Good morning, everyone. Few of the attendees are still joining, so we'll start the session within 5 minutes. हेलो पूछो ना आवाज આવે છે તારો આ માઇક્રો બતાવ એમને એમને हेलो आगे क्या हेलो हेलो Chandran, you are audible. Sajid, can you please share your screen till then as we start the webinar in 5 minutes? Hi everyone.
and very, very warm welcome to our Ultimatics Payroll and HRMS series. I hope that everyone is safe with their families and those who are working from home quarantine themselves during this global fight against the COVID-19 virus. But yet, there are still those people who just report their jobs daily, day in and day out. These are the ones that we call them the frontliners. As a team, we would like to show gratitude to them and would also encourage our support for these brave women and men who take their life at risk and report every day. So myself Sonia Alwani, and it is my pleasure to welcome back once again, welcome you all to this webinar series. Our today's topic is how we can help the HR teams to work smarter with help desk. In this session, I have my co-host Mr. Chintan Prajapati, and in today's panel, we have Mr. Umang Patel and Sajid Myanmar who are joining with us, and both of them have a very rich experience in their implementation division or implementation part. Apart from this, I just want to provide you the glimpse of today's session. We'll have a brief overview of Ultimatics help desk and how we can help the HR team through this help desk. In between, we have the polling too. So everyone has to poll to those questions, and we'll have a question answer session apart from all these sessions. So it's my pleasure to invite all the panelists, and without any further ado, I'll call upon Mr. Sajid to start the session. Over to you, Sajid. Good morning, everyone. Today we will explain you to how to use the Ultimatics Help Desk module in Orange Payroll HRMS software. Okay. ये टेबल ऑफ कंटेंट के अल्टीमेटिक्स पेरोल में टेबल ऑफ कंटेंट कितने हैं, क्या क्या चीज आप यूज कर सकते हो हेल्प डेस्क मॉड्यूल के अंदर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प डेस्क टिकटिंग सर्विस सॉफ्टवेयर, इजी टू कॉन्फ़िगर वर्कफ्लो ऑटोमेशन, यानी कि आपका जो हेल्प डेस्क का मॉड्यूल है वो इजीली आप उसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। जनरेट एम्प्लॉय टिकट रिक्वेस्ट टू HR रिलेटेड, generate ticket request to IT related, information technology EDP related, generate employee ticket request to account related, generate employee ticket request to travel desk related, and other reports are available, automate email alerts. Then we will go to next slide to the how to configure the HR person, IT person, account person के जो HR का जो बंदा है जो एम्प्लॉय की क्वेरी सॉल्व करेगा, टिकट क्लोज करेगा। जैसे IT का बंदा है, वो IT का बंदा कैसे टिकट क्लोज करेगा, तो वो सबसे पहले क्या है कि IT का बंदा है, HR का जो भी है एम्प्लॉय, वो अपने को कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो वो मैप करना जरूरी है। तो आपको मैं कैसे बताता हूँ कि जैसे कि कंट्रोल पैनल के अंदर एडमिन सेटिंग है, एडमिन सेटिंग के अंदर एडमिन सेटिंग है, वहां पे जाके अपने को एडमिन सेटिंग के अंदर HR एंड अकाउंट ईमेल आईडी है, वहां पे अपने को मैप करना है कि IT के लिए कौन रहेगा, HR के लिए कौन रहेगा, अकाउंट के लिए कौन रहेगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम वगैरह सिलेक्ट करना है कि अगर अकाउंट के अंदर है, अकाउंट के अंदर मिस्टर राकेश पारेख है, अगर अकाउंट की कोई भी टिकट एम्प्लॉय एप्लीकेशन रेज करेगा तो मिस्टर राकेश पारेख उसका अप्रूव करेगा। उसी तरह HR है तो HR का मिस्टर नटवर सरगरा, उनका मैं कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। तो एम्प्लॉय जो भी टिकट एप्लीकेशन करेगा तो नटवर सरगरा के पास जाएगा अप्रूवल के लिए। उसी तरह IT का भी कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। तो ये चीज अपने को कॉन्फ़िगरेशन करना जरूरी है, मैप करना जरूरी है टिकट मॉड्यूल के लिए। नेक्स्ट स्लाइड कि कैसे आपको टिकट क्रिएट करना है।
कि HR की कौन सी टिकट्स है, IT रिलेटेड कौन सी टिकट्स है, फिर अकाउंट रिलेटेड कौन सी टिकट्स है, वो कैसे क्रिएट करना है। तो उसमें है मास्टर मेनू में जाना है, अदर मास्टर के अंदर टिकट टाइप मास्टर है। तो टिकट टाइप मास्टर में जैसे अपने क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐड बटन करके। जैसे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना टिकट सिलेक्ट कर क्रिएट करना है कि जैसे कि मल्टीपल टिकट होती है, लेन इसमें अभी बताया है कि लैन केबल, जैसे कि IT के रिलेटेड टिकट होती है कि लैन केबल नहीं चल रहा है कभी कभी, या HR के रिलेटेड कोई टिकट हो, तो यहाँ पे अपने को मल्टीपल टिकट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपको बताऊं मल्टीपल टिकट हमने क्रिएट किए है, जैसे कि लैन केबल के टिकट है जो IT के रिलेटेड है, फिर लीव बैलेंस इश्यू है, फॉर एग्जांपल HR रिलेटेड टिकट है, वो लेटर का कुछ है इश्यू, HR रिलेटेड टिकट है, लोन का इश्यू है अगर वो अकाउंट रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल टिकट्स क्रिएट कर सकते हो। तो एम्प्लॉय को वो बेनिफिट होगा कि एम्प्लॉय उसी ऑरेंज पोर्टल से ही एम्प्लॉय टिकट रेस करेगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो सीधा ईमेल अलर्ट और नोटिफिकेशन सीधा जो भी रिस्पेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसका IT रिलेटेड एम्प्लॉय होगा या HR रिलेटेड एम्प्लॉय होगा, उसके पास जाएगा सीधा। तो वो उसको पता चल जाएगा कि ये बंदे का ये चीज प्रॉब्लम है, वो सीधा इमीडिएटली सॉल्व कर सकता है जाके उसके पास। तो यहाँ से आपने अभी टिकट मास्टर क्रिएट किया। अब टिकट मास्टर के बाद एक टिकट प्रायोरिटी करके भी ऑप्शन है। टिकट प्रायोरिटी क्या है, इसमें अपने मल्टीपल प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, जैसे कि हाई प्रायोरिटी है, लो प्रायोरिटी है, मीडियम प्रायोरिटी है। उस तरह जो भी बंदा है वो सिलेक्ट कर सकता है कि मेरी ये टिकट मैं रेस कर रहा हूँ वो कौन सी प्रायोरिटी पे मुझे सिलेक्ट करना है। तो अभी क्रिएट किया हुआ है कि हाई प्रायोरिटी पे, जैसे कि एस्केलेशन हावर्स 5 है। अब इसमें एस्केलेशन हावर्स क्या है, जैसे कि 5 कलाक है अभी हाई प्रायोरिटी पे, ठीक है। अब एस्केलेशन के बाद एस्केलेशन में क्या होता है कि अगर 5 घंटे तक वो टिकट सॉल्व नहीं होती है तो नेक्स्ट जो भी अथॉरिटी लेवल होता है उसके पास जाती है रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे हमने 3 प्रायोरिटी मास्टर क्रिएट किए, एक हाई प्रायोरिटी मास्टर, एक लो प्रायोरिटी मास्टर एंड मीडियम। हाई के अंदर रखा है हमने 5 आवर्स, लो के अंदर रखा है 15 आवर्स और मीडियम के लिए अंदर रखा है 10 आवर्स। अगर किसी एम्प्लॉय ने टिकट का रिक्वेस्ट किया हाई प्रायोरिटी पे, अगर वो बंदा 5 घंटे के अंदर सॉल्व नहीं करता है, क्लोज नहीं करता है टिकट, तो वो एस्केलेशन होगा नेक्स्ट लेवल। अब मैं आपको बताता हूँ आगे कि किस तरह आपको इसमें एप्लीकेशन करना है, एम्प्लॉय कैसे एप्लीकेशन करेगा टिकट मॉड्यूल की। अब एम्प्लॉय ESS लॉगिन करेगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर टिकट रिक्वेस्ट करके मेनू है, उसके अंदर टिकट ओपन करके मेनू है, वहां पे क्लिक करना है। जैसे टिकट ओपन के ऊपर क्लिक करेगा एम्प्लॉय, तो यहाँ पे ऐड का बटन दिया हुआ है, वहां से एक नया टिकट रेस करने के लिए वो ऐड करेगा। तो यहाँ से आपको ऐड करना है, एम्प्लॉय को यहाँ से ऐड करना है कि किस तरह टिकट ऐड करना है नया वाला, तो यहीं से टिकट ऐड करना है। जैसे यहाँ से टिकट ऐड करेगा, फिर यहाँ पे एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है कि मेरे एम्प्लॉय को कौन से टिकट रेस करना है, IT रिलेटेड है, HR रिलेटेड है,
अकाउंट्स रिलेटेड है, जो भी रिलेटेड टिकट्स है वो एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे अभी एम्प्लॉय ने सिलेक्ट किया हुआ है कि आईटी असाइन टिकट। अब आईटी असाइन टिकट सिलेक्ट किया है, उसका जो टाइप है कि क्या है, तो लैन केबल टाइप है। ये टाइप जैसे कि अपने पहले जो मास्टर में क्रिएट किया है वही टाइप यहाँ पे फिल्टर आएगा, वहां से जो क्रिएट किया है वही यहाँ पे डिस्प्ले होगा एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय ने सिलेक्ट किया है आईटी रिलेटेड टिकट, लैन केबल सिलेक्ट किया है टाइप, और टिकट में डिस्क्रिप्शन भी लिख सकता है कि क्या वर्क नहीं कर रहा है। ओके, अब उसकी प्रायोरिटी एम्प्लॉय ही सेट करेगा कि मेरा ये लैन केबल का इश्यू है तो मुझे इसको हाई प्रायोरिटी पे सॉल्व करना जरूरी है। तो एम्प्लॉय कैन सिलेक्ट द प्रायोरिटी, तो एम्प्लॉय उसकी प्रायोरिटी सिलेक्ट कर सकता है। उसके अलावा अदरवाइज एम्प्लॉय अटैचमेंट भी कर सकता है। अगर उसके पास कुछ प्रूफ है तो अगर फोटो लेके अटैचमेंट भी कर सकता है। तो जैसे यहाँ से फिल करके सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये सीधा रिक्वेस्ट उसका जो भी आईटी का ऑथोरिटी पर्सन होगा उसके पास जाएगा, इवन ईमेल अलर्ट भी जाएगा। तो यहाँ से एम्प्लॉय ने टिकट सेव कर दिया। अब टिकट सेव करने के बाद सीधा वो उसके अप्रूवल अथॉरिटी के पास है। उसके पास जाएगा। अब यहाँ से इसके अलावा ईमेल अलर्ट भी आएगा। ईमेल अलर्ट आएगा। ईमेल अलर्ट इस तरह आपको दिखा है स्क्रीन पे, इस तरह का ईमेल अलर्ट आएगा। ईमेल अलर्ट आने के बाद अब जो उसका रिस्पेक्टिव जो अप्रूवल अथॉरिटी जिसके पास है वो किस तरह अप्रूव करेगा, वही उसको ईएसएस मेनू में जाना है। उसका जो टिकट रिक्वेस्ट के अंदर है टिकट क्लोज, टिकट क्लोज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे टिकट क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आएगा कि कितने टिकट उसके अकाउंट के अंदर ओपन है। तो यहाँ पे मल्टीपल अगर टिकट ओपन होगी तो मल्टीपल टिकट यहाँ पे उसको दिखाएगी। तो अभी जैसे अपनों ने रिक्वेस्ट किया है मिस्टर हसमुख मकवाना का, तो उसका लैन केबल का टिकट आया हुआ है, इश्यू किया हुआ है। ओके, तो यहाँ से ओपन करके वो टिकट क्लोज कर सकते हैं, या तो होल्ड भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक कैंडिडेट करके भी ऑप्शन है अवेलेबल। अब ये कैंडिडेट का ऑप्शन क्या है वो थोड़ा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। कैंडिडेट का क्या है कि अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एक रिक्रूटमेंट मॉड्यूल अवेलेबल है, और इसके अंदर कोई भी बंदा आप रिक्रूट करते हो, जब रिक्रूट कर रहे हो तब अगर समझ लो कि कोई एक एम्प्लॉय को रिक्रूट किया, उसको कुछ एलोकेट करना है, या आईटी के रिलेटेड लैपटॉप असाइन के लिए उसको एलोकेट करना है, या उसको अकाउंट रिलेटेड के बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको असाइन करनी है टिकट, तो आप वो टिकट भी एक वहां से कैंडिडेट रिक्रूटमेंट पैनल से आप असाइन कर सकते हो। तो जो भी उसका आईटी मैनेजर होगा या अकाउंट मैनेजर जो भी असाइन किया हुआ होगा उसके पास रिक्वेस्ट जाएगा, तो उसको पता चलेगा कि ये बंदा कैंडिडेट आने वाला है अपने लिए कंपनी में प्रीमाइसिस में। तो, तो उसके लिए वो वहां से फिर अप्रूव करेगा और उसको असाइन करेगा। जैसे यहाँ पे अभी ओपन करके ये अप्रूव कर रहे हैं टिकट, टिकट क्लोज कर रहा है कि टिकट के अंदर जो भी रिजोल्यूशन सबमिट करना है, जो भी क्लोज कर रहा है वो रिजोल्यूशन सबमिट कर सकता है, और क्लोज और होल्ड दोनों कर सकता है। जैसे अप्लाई कर दिया,
अब आपको मैं बताता हूँ कि एडमिन पैनल से आपको किस तरह इसका टिकट का रिपोर्ट देखना है। एडमिन पैनल के अंदर होम पेज के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर टिकट डैशबोर्ड करके ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी टिकट टोटल टिकट आई हुई है, कितनी ओपन है टिकट, कितनी होल्ड पे है, कितनी क्लोज है। तो यहाँ से आप ग्राफिकली रिपोर्ट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको काउंट भी मिलेगा, डिपार्टमेंट वाइज है, मॉड्यूल वाइज है, कंपैरिजन मिलेगा आपको। अब यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना है अगर, तो यहाँ पे आपको नीचे एक्सेल टू एक्सेल का प्रोविजन भी दिया हुआ है हमने कि यहाँ से आप एक्सेल एक्सपोर्ट टू एक्सेल रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हो टिकट का पूरा। इस तरह आप टिकट का जो मॉड्यूल है वो आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आप मोबाइल से भी आप टिकट का प्रोविजन कर सकते हो। जो मोबाइल एप्लीकेशन है अल्टीमेटिक्स पेरोल, उससे भी आप टिकट का रिक्वेस्ट एम्प्लॉय कर सकता है और मोबाइल से ही क्लोज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। Thank you so much, Sajid. Now we are moving forward with the next part. So I just call upon Mr. Oman to start the session. हाँ, अब अपने देख रहे हैं एक सर्वे मॉड्यूल। सर्वे मॉड्यूल क्या है कि आप अपने कंपनी के अंदर कोई भी अपने सर्वे करना चाहते हो, लाइक कोई टूर्नामेंट करनी है आपको, कोई एंगेजमेंट एक्टिविटी करनी है, तो वो आप ऑरेंज अल्टीमेटिक्स पेरोल के अंदर से आप सर्वे कर सकते हो। सर्वे किस तरह आप करना है, किस तरह आप कर सकते हो सर्वे मॉड्यूल इम्प्लीमेंट, तो वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। सर्वे के अंदर किस तरह है कि किस तरह आप क्रिएट कर सकते हो सर्वे टेबल ऑफ कंटेंट। सर्वे के अंदर मल्टीपल क्वेश्चनरी भी क्रिएट कर सकते हो आप। एम्प्लॉय सबमिट कर सकता है सर्वे, यानी कि सबमिशन रिस्पॉन्स, एम्प्लॉय का क्या रिस्पॉन्स है सबमिट कर सकता है। आपको मैं बताता हूँ आगे कि किस तरह आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है कि हाउ टू क्रिएट अ सर्वे। तो एडमिन लॉगिन के अंदर होम पेज से ऊपर आपको दिखा रहा भी कि सर्वे अदर डिटेल्स के अंदर है सर्वे। तो क्लिक हियर सर्वे मॉड्यूल, हाउ टू क्रिएट अ सर्वे। तो क्लिक हियर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है सर्वे क्रिएट करने के लिए। जैसे आप सर्वे पे क्लिक करोगे तो सर्वे का एक फॉर्म ओपन होगा आपको। यहाँ से आपको ऐड करना है। राइट हैंड साइड के ऊपर ऐड का प्रोविजन दिया हुआ है, यहाँ से आप ऐड करोगे तो आपको सर्वे क्रिएट होगा। तो यहाँ पे अभी एक सर्वे क्रिएट किया है, वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2020। और यहाँ पे सर्वे का जो पर्पस दिया हुआ है कि पर्पस भी आप डाल सकते हो, इंस्ट्रक्शन भी डाल सकते हो सर्वे का। और सर्वे ओपन अनटिल, यानी कि टिल ओपन, कब तक आपको ओपन रखना है सर्वे। स्पेशली आप सर्वे उसको ब्रांच वाइज भी कर सकते हो, डेजिग्नेशन वाइज भी कर सकते हो, और यूजर स्पेसिफिक भी कर सकते हो।
और एम्प्लॉय को सेंड ईमेल भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप सर्वे जैसे क्रिएट करोगे, सेव करना है, क्रिएट करने के बाद जैसे सेव किया तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कि वॉलीबॉल टूर्नामेंट सर्वे। अब ये सर्वे के अंदर आप मल्टीपल क्वेश्चनरी भी क्रिएट करना है। सर्वे मास्टर क्रिएट कर दिया, अब उसके अंदर कितने आपको क्वेश्चनरी रखना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है एक्शन के अंदर, क्लिक हियर टू क्रिएट अ क्वेश्चनरी। यहाँ पे आप अभी क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ है कि विल यू पार्टिसिपेट इन वॉलीबॉल टूर्नामेंट। अभी यहाँ पे क्वेश्चनरी टाइप है, वहां पे रेडियो बटन सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप मल्टीपल चेकबॉक्स सिलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल चॉइस भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, तो यू कैन सिलेक्ट। आपको जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है क्वेश्चनरी के लिए वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी जो भी मल्टीपल आप जो भी क्वेश्चन क्रिएट करोगे वो एक क्वेश्चनरी की बैंक बन जाती है कि नेक्स्ट टाइम आपको अगर कोई वही सर्वे क्रिएट करना है तो आप क्वेश्चनरी बैंक में से आप ले सकते हो। यहाँ से सिर्फ ऐड करना है, क्वेश्चनरी बैंक के अंदर से आप ऐड कर सकते हो। तो जितने भी आप मल्टीपल क्वेश्चन क्रिएट करोगे वो एक क्वेश्चन बैंक के अंदर स्टोर भी होता है। वो सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन बैंक के अंदर स्टोर होते हैं। अब ये सर्वे क्रिएट कर दिया, एम्प्लॉय के पास रिस्पॉन्स चला गया है कि फिल अप द सर्वे फॉर्म। ओके, अब एम्प्लॉय कैसे सबमिट करेगा, उसका फिलअप करेगा सर्वे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चनरी क्रिएट किया हुआ है। अब एम्प्लॉय एक मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू भी सर्वे का फिलअप कर सकता है, सर्वे फिल सबमिट कर सकता है मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू भी, और अपना वेब एप्लीकेशन थ्रू, दोनों से एम्प्लॉय सबमिट कर सकता है, सर्वे फिल कर सकता है। तो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जैसे लॉगिन करेंगे एम्प्लॉय, यहाँ पे एक सर्वे करके फीचर्स दिया हुआ है। जैसे सर्वे पे क्लिक करेगा तो एक क्वेश्चनरी का ओपन होगा मेनू, वहां से वो यस या नो जिस तरह आपने क्वेश्चन क्रिएट किए होंगे वो वहां से फिल करके सबमिट करेगा। ईएसएस से जो वेब पेरोल है, वेब लॉगिन है, वहां से किस तरह वो सबमिट करेगा। तो वेब पेज में लॉगिन करेगा एम्प्लॉय, उसके बाद उसको होम पेज के ऊपर नोटिफिकेशन के अंदर फिलअप द सर्वे फॉर्म करके है, वहां पे क्लिक करना है एम्प्लॉय को। जैसे वहां पे क्लिक करेगा एम्प्लॉय तो यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन, अगर जितने भी क्वेश्चन क्रिएट होंगे सर्वे के अंदर वो यहाँ पे दिखेंगे। अभी एक क्वेश्चन जो क्रिएट किया हुआ वो दिख रहा है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स दे सकता है एम्प्लॉय यस या नो। तो जैसे यहाँ पे अब मैं सबमिट किया है यस और सबमिट कर दिया, तो ये रिस्पॉन्स है वो एडमिन में चला जाएगा, एडमिन पैनल में। तो एचआर कैन व्यू यानी कि एडमिन देख सकता है कि किसने क्या रिस्पॉन्स दिया है। एडमिन पैनल में आ गए अपने, जैसे कि सर्वे में जो सबमिट कर दिया, अब एडमिन पैनल में किस तरह वो रिस्पॉन्स देख सकते हैं एडमिन में, वही है सर्वे फॉर्म के अंदर। यहाँ पे ग्राफिकल रिपोर्ट्स अवेलेबल है। यहाँ पे आंसर चॉइस यानी कितने 86% रिस्पॉन्स आया है, 30% नो का रिस्पॉन्स आया है। काउंट भी मिल सकता है आपको, कितने एम्प्लॉय ने रिस्पॉन्स दिया है। उसके अलावा इसमें पीडीएफ भी दिया हुआ है और एक्सेल रिपोर्ट भी अवेलेबल है, तो आप पीडीएफ भी जनरेट कर सकते हो, एक्सेल भी जनरेट कर सकते हो। और इसके अलावा जो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर प्रोविजन अवेलेबल है, वो भी अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो आप हमारे जो टीम है उसका आप
कनेक्ट कर सकते हो। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे ईमेल आईडी पे सपोर्ट के ऊपर आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हो, तो वी कैन हेल्प यू। और अगर फीडबैक है तो आप फीडबैक का भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू। हैंड ओवर टू मिस्टर सोनिया। Thank you, Sajid. Now I'd like to call Mr. Umang to throw some light on the session. Please, Umang, welcome. Before starting the session of Umang, I would like to request all the attendees to please answer the poll. Everyone is requested to please answer the poll. We have 30 seconds time left. All are requested to please answer the poll. I think it's done. Thank you so much, all the attendees, for sharing your answer to the poll. Now, Umang, please start the session. Chetan, I think there is some issue in that. Can you please take this session over? Yes. I think all the two session has been conducted from the Sajid. You can have a question answer session. Yes. If you. Yes, we can. All the attendees are requested to please answer the questions, are able to answer the questions. All are requested to please submit their queries and concerns. There are a few queries from Roma and Gupta. I just take those queries so that if all the attendees have same doubts, they can clear that too. So the query from Roma and Gupta is, if within all the 3 level priority time limit, the problem is solved by the concerned person, then what is the next step? Today I'm explaining in a detail. So I'm just sharing my screens to you here. Yes, sure. Just hold on. Yeah. So here, if you'll see, you people are able to see my screen. So here, if you have the multiple peoples on a branch wise, so whenever just you are creating that HR admin logins to be over here, you can just select the particular locations or a branch. So whenever just employees requesting their query, so it will be addressed to the particular locations concerned person. Okay, or if you have the common people,
you can select all the locations together whenever this you are creating the IDs to be over here. So it will address to any single person. And here what is happening in the terms of the escalations level, as they have said, we can just in the next slide we have just configured the timeline, like after 4 or 5 hours, whatever this Sajid Bhai have told us. So we have configured the hours timelines in our escalations. So what happened, whoever the next reporting, see, if I'm reporting to XYZ person, so if I'm not resolving the query within 5 or to 6 hours, whatever which we have defined in our timelines as per priorities to be over there, so it will escalate to the next level. Okay, so I think I hope everybody has been clear on these particular things, how it will escalate to the next level. Yes, definitely. So our next question is, post service also possible in this module? What? Pardon, please? Post survey is possible in the survey module? Like post service, it is mean nothing. Just whenever just you are just opening your survey to the everyone else. So what happened? You have the specific rights over there which we have given. So you can just give your survey to the specific employee, specific branch, specific designation wise. And if you have opted the mobile application, so it will be display on mobile application also. Or if you are not opted for mobile application, it will be displayed on employee SS login. Okay. Our next question is from Ravindra Singh. He is asking, in survey module, answer submission will come with date and time. Yes, you can have that options that whenever just you are opting the like exporting the data, so you will have the availability when which person has been submitted the answers. I hope Ravindra is clear with the answer. The next question is from Hiren Ramani, and he's asking, can we set ticket and process? Currently, there are only two options, close and hold. I think Mr. So Hiren wants a status like in process. okay, so that we can. Okay. The next question In the is next from week, Roma we'll Singh try to Gupta cover this again. point. Yeah. Okay. So next question is from Roma Singh Gupta. Every time employee raise ticket, mail will also be triggered to the concerned person. Yes. Here, whatever Should I the repeat the question? ID. Yeah, whatever the ID which you have defined in a email ID configuration regarding the HR's account, help desk, and IT, so they will get a mail triggers. I hope Roma is clear with the solution. The next question is again from Hiren Ramani. He is asking, user will receive the notification after update on the ticket. Yeah, once ticket has been closed, user will get a mail notifications. Okay. The next question is again from Mr. Hiren Ramani. He is asking, can I assign ticket to another level? No, as of now, it is not the provisions which we have given over here, but the escalations level which we have defined, so automatically escalate to the next level if ticket is not resolving within a timeline. Hope Hiren is clear. The next question is again from Hiren itself. He's telling that can I create and survey, I mean, employee satisfaction survey or customer satisfaction survey in the survey module? Yeah, you can take, see, survey module, it is a open point, so whatever the things on whatever the query on, see, on the whichever topic you would like to take any survey from the employee, so you can conduct as per your convenient timeline and the topics. Okay. The next question is from Ravindra Singh. He is asking, for help desk module, we will admin login to IT, admin and account person. I mean, he is asking that they can provide the admin login to IT, admin and account person for help desk module especially. No need to give an admin login to the employee. See,
whatever the normal ESS rights which you have given to the employee, so it will get reflected on those particular things and they can resolve the query from their ESS login. Okay. I hope Ravin has cleared the answer. Next is from Mr. Virendra Putri, and he is asking, can we create questions and remarks? Regarding what? This is, I think, regarding the survey module. Can we create the questions and remarks? As of now, remarks provision is not there. See, especially you can just create one more question at the last. Just whatever the whichever, see, in the normal text mode, so employee can fill up any remarks in that particular. Okay. I hope it is clear. Next See, whenever question is just you are from- creating the question. Yes. See, whenever just you are creating the questionnaires for any survey, so at last you can create one more questions as a remarks or as a feedback from the employee. So you can get a feedback in those particular questionnaires with the text mode. I hope Devendra is very clear answer. The next question is from Mr. Hiren Pramani, and he's asking, user can be closed it again. Pardon, please, Sonia. Actually, I could not hear you. I just repeat the question. Mr. Hiren is asking that user can reopen the closed ticket again. No, they need to create any. See, once ticket is closed, it cannot be reopened. They need to raise a new ticket only. Okay. I hope Hiren is very clear with the answer. The next question is from Roma Sen Gupta. If within 3-level timelines, high, medium, low problem is not solved, then what is the next step? See, it is up to, because see, I think what is happening, because see, after 5 hours it will be escalated to next level, so it will be reached to the maybe concerned person. So I hope it is, see, in a certain organization, see, if I am the HR person and if I'm just reporting to XYZ person, so I hope it will, when it goes to the HOD level, so it always getting the resolve. But see, yes, you know, it is already reached to the like concerned person in the level of HOD. So now it is their call to how to handle those kind of queries. Okay. I hope Roma is very clear with the answer. The next, actually, there's no question, but there is suggestion from Mr. Parth Bhatt, and I would also like to give applause to Parth Bhatt, who is recommending such a very nice, comment on the session. He's telling that we should have a functionality like SurveyMonkey in the survey module. Okay, we'll see for next update. Thank you so much, Parth, for this suggestion. We are noting this and definitely we'll do something on this. Thank you so much, Parth. So next question is from Abhilasha Purohit. And the question is there any option for open-ended question in the questionnaire for survey? Should I repeat the question? Sure. Okay. Is there any option for open-ended questions in the form of survey? Okay, so it means, see, they want key, they doesn't want to declare key who have submitted any questions, who have given input. So see, there is options is, I think, available. We'll just let you know in a detail. Okay. The next question is from, I think, the last question of the session, and Mr. Hill is asking the question. He's asking that hope there is a security for assigning access to HR, IT, and account. I mean, IT person can see only its ticket, and HR person can view only HR ticket. Yes. So we have just defined those particular ticket-wise departments, so they cannot have a rights to view the other tickets.
Okay, the last question is there. This is for PPT. Ravindra Singh is asking that can he get the both module PPT Sure. for the review? After as you know, Sonia, we are whenever just we are ending the webinar session, so we are submitting the every PPT to the concerned attendance to be over here. So everybody is getting the video and the PPTs, right? Yeah. So this was the end of question answer session, and I would also like to thank all the attendees who have invested their valuable time, and also would like to thank all the panelists, Mr. Chintan, Mr. Sajid, who had given us such a valuable information. I think this information will be very useful to us in future. Further, to all these attendees, you can share your concerns at feedback@orangewebtech.com. Even you can tell us on which kind of topic we can arrange the session and in what language. Your responses and comments are very important to us, so please share your comments. Once again, thanks to all the attendees for joining the session. Please be at home and be safe with your loved ones. Thank you so much.